Hello everyone, welcome to Study Icon. In this video, I'm going to explain the Hindu Weekly Current Affairs from 1st January to 8th January with some extra points. And ये जितनी भी मैं क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने कलेक्ट करे हैं. प्लीज इसको कहीं पे राइट डाउन कर लीजिएगा. बाकी तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा अपने फेसबुक पेज पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. The first question, it is written as the GDP growth is estimated at what percentage of in 2016-17 as per the data released recently by the CSO. CSO का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो अराइज होता है वो ये है कि CSO का फुल फॉर्म क्या होता है. तो CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. ओके, सो इन्होंने अपनी जो प्री डीमोनेटाइजेशन फिगर थी वो थी इनकी 7.6%, बट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन और से पोस्ट डीमोनेटाइजेशन फिगर जो इनके हैं वो है 7.1%. सेम थिंग हैज डन बाय द आरबीआई. ओके, आरबीआई ने भी अभी अपनी एनालिसिस दी है. वो कहा है, आरबीआई ने कहा है कि 7.1% जीडीपी ग्रोथ आरबीआई ने भी अपनी एनालिसिस दी है, आरबीआई ने भी एस्टिमेट करा है. ठीक है, इसके पहले आरबीआई ने 7.6% एस्टिमेट करा था, बट अब आरबीआई ने भी 7.1% किया है. Okay, if we talk about 2016-17, so you know what is a financial year period. So period है 1st April to 2016 to 31st March 2017 तक का ही पूरा फिगर पूरा पीरियड होता है. जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट जो भी करी गई है ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए करी जाती है. तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1st April 2016 टू 31st March 2017. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. A telecommunication technology test satellite has successfully test fired from which place from the Xichang satellite launch center recently. So the answer is China. A telecommunication technology test satellite has successfully test fired by the China. Okay, from the Xichang satellite launch center. Another extra point here: quantum satellite is also launched by the China. Okay, the purpose of the quantum satellite to be launched to establish hack-proof communications between space and ground. So you know quantum satellite का purpose क्या था कि जो एक हैक प्रूफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है स्पेस एंड ग्राउंड के बीच में. तो ये एक क्वांटम सैटेलाइट का पर्पस था. तो ये भी किसने लॉन्च की थी? ये भी लॉन्च की थी चाइना ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the Britain's new ambassador to the European Union recently? This is really important question. Sir Tim Barrow. Sir Tim Barrow आंसर है इसका A. Sir Tim Barrow has been appointed as the Britain's new ambassador to the European Union recently. Okay. Extra point here. Ranbir Singh, Bollywood actor, named the first Indian ambassador for Switzerland tourism. So first Indian ambassador for Switzerland tourism, Bollywood actor Ranbir Singh has been appointed. Okay. Next question. Vice President Hamid Ansari has released okay, the first point please write down. Vice President, who is the Vice President of India? Hamid Ansari. Okay, Vice President Hamid Ansari has released a book titled The People's President, Dr. APJ Abdul Kalam. Who is the author of the book? The answer is a SM Khan. The answer is a SM Khan. Okay, so Amish Tripathi, SM Khan, Krishna Rao, Chetan Bhagat. So the answer is a SM Khan. Okay, okay. So Vice President Hamid Ansari has released a book titled so SM Khan, The People's President, Dr. APJ Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam book has been authored by the SM Khan. Okay. Next question. Yes, some extra points also there. Grassroots innovation has been authored by the Professor Anil Gupta and Citizen and Society authored by the Mohammad Hamid Ansari. Okay, Mohammad Hamid Ansari ने Citizen and Society को लॉन्च करा था और प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने Grassroots Innovation. These two books are really important. Okay, Grassroots Innovation has been authored by the Anil Gupta and Citizen and Society has been authored by the Mohammad Hamid Ansari. Okay, next question. Renowned Abdul Halim Jafar Khan died due to cardiac arrest. So क्वेश्चन ये है कि अब्दुल हलीम जाफर जो है ये किस फील्ड से रिलेटेड है थे. इनकी डेथ हुई है तो ये रिलेटेड थे सितार प्लेयर थे. ओके, तो रिनोड सितार प्लेयर अब्दुल हलीम जाफर खान डाइड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट. सो द आंसर इज अ सितार प्लेयर. ओके, सितार प्लेयर थे अब्दुल हलीम जाफर खान जो थे ये सितार प्लेयर्स थे. ओके, सितार प्लेयर थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. IBM has appointed as MD of IBM India Private Limited, succeeding
Vanitha Narayan, who has been appointed as chairman of the Indian subsidiary? So the answer is a Karan Vajwa. ठीक है, Karan Vajwa has been appointed by the IBM as MD of IBM India Private Limited. Okay, succeeding Vanitha Narayan. Okay, so the IBM has been appointed Karan Vajwa as MD of IBM India Private Limited. So the answer is Karan Vajwa. Okay, answer is a Karan Vajwa. एक्स्ट्रा पॉइंट इफ वी टॉक अबाउट, एचसीएल ने आईबीएम के साथ एक टाई अप करा था, 15 ईयर पार्टनरशिप में इंटर करेंगे ये लोग फॉर ऑटोमेशन एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस. ओके, सो एचसीएल प्लस आईबीएम इंटर इनटू पार्टनरशिप, 15 ईयर पार्टनरशिप फॉर ऑटोमेशन and development and operations. Okay, so IBM has appointed Karan Vajwa as MD of India IBM India Private Limited. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, नेक्स्ट. Who has been appointed as the chairman of Tata Power after the resignation of Cyrus Mistry? साइरस मिस्ट्री को दो ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव करा गया था. एक थी टाटा इंडस्ट्रीज, प्लीज लुक एट हियर. एक ऑर्गेनाइजेशन थी टाटा इंडस्ट्रीज और एक ऑर्गेनाइजेशन है टीसीएस. टीसीएस ने भी रिमूव करा था और टाटा इंडस्ट्रीज ने भी रिमूव करा था. पहले टाटा इंडस्ट्रीज ने करा था रिमूव, फिर टीसीएस ने करा था. रीजन ये था कि साइरस मिस्ट्री जो थे, टाटा इंडस्ट्रीज ने जो उनको रिमूव करा था, ये क्या कर रहे थे कि जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उन पे तो फोकस कर रहे थे, पर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी ये उनको क्लोज कर रहे थे, उनको मर्ज कर रहे थे. तो वो बात ओनर को पसंद नहीं आई, टाटा इंडस्ट्रीज के ओनर को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इनको रिमूव कर दिया. ओके, रतन टाटा को ये बात पसंद नहीं आई, तो इन्होंने उनको साइरस मिस्ट्री को रिमूव कर दिया. कोई भी ओनर होता है वो क्योंकि वो अपनी हर चीज को रखना चाहता है, लेकिन ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक कर रहे थे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे थे, तो इन्होंने इनको निकाल दिया था. उसके बाद तुरंत एक मूव लिया गया जो टीसीएस ने लिया, टीसीएस ने भी इनको रिमूव कर दिया. ओके, सो द टाटा सन्स, so answer is who has been appointed as the chairman of Tata Power after the resignation. So the answer is S. Padmanabhan. Okay, S. Padmanabhan has been appointed by the chairman of the Tata Power after the resignation of Cyrus Mistry. Okay, so the answer is S. Padmanabhan. ठीक है, आप बस सिर्फ सुनिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सिर्फ सुनिए. इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following private sector banks has launched a month-long campaign to promote a group personal accident insurance scheme for savings bank account holders? So the answer is a Karnataka Bank. Karnataka is a private sector bank, so Karnataka Bank has launched a month-long campaign to promote a group personal accident insurance scheme for saving bank account holders. Okay, KBL सुरक्षा लॉन्च करा है कर्नाटका बैंक ने. 2 जनवरी को ये लॉन्च करा गया था और ये 31 जनवरी तक फोर्स में रहेगा. 31 जनवरी तक ये रहेगा. ओके, सो द व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन इज अ केबीएल सुरक्षा. केबीएल सुरक्षा लॉन्च करी है किसने? कर्नाटका ने. ठीक है, और किसकी एसोसिएशन, किस एसोसिएशन या किसके साथ करी है? तो द आंसर इज द यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने करा है. वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा कंपेन लॉन्च किया है. इफ वी टॉक अबाउट कौन सा कंपेन लॉन्च किया है, तो कंपेन का नाम है केबीएल सुरक्षा. कंपेन का नाम है केबीएल सुरक्षा, और किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वोटर्स, कैंडिडेट इलेक्शन स्टाफ एज वेल एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the district administration of Ludhiana, please write down this question because this is really important question. Okay, for the benefit of the voters, candidate election staff as well as election commission of India, the district administration of Ludhiana has developed a mobile application named as a ECI 360. Okay, so the answer is a ECI 360. ये एक बताता हूँ, 1 मिनट. ओके, सो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये लॉन्च किया है लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने. ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ वोटर्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द आंसर इज ECI 360, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ECI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच हैज बीन टाइड अप विद स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. सिडबी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप जिसको सिडबी बोलते हैं, Small Industry Development Board of Bank of India, for augmenting capital support to enterprises in the country.
So the answer is a Life Insurance Corporation of India. So LIC has been tied up with a SIDBI. LIC has been tied up with a SIDBI for augmenting capital support to enterprise in the country. Okay, chaliye next question. Which among the following states government has announced a new scheme to provide financial assistance of 1000 rupees per month each to single women in the state recently? Answer is a Telangana. तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, एक न्यू स्कीम अनाउंस करी है फॉर 1000 रुपए पर महीने देने के लिए जो भी सिंगल वुमेन्स है स्टेट में, each to single woman. Okay, so which among the following states government has announced a new scheme to provide financial assistance of 1000 rupees? कितने रुपए देने का करा है? 1000 रुपए. ठीक है, किस स्टेट ने करा है? तेलंगाना स्टेट ने करा है. So तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट has announced a new scheme to provide financial assistance of 1000 rupees per month each to single woman in the state. सो ये मूव किसने लिया है? तेलंगाना ने लिया है कि हर एक जो वुमेन है उसको 1000 रुपए महीने का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. State owned fuel retailers Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited will offer an upfront discount of 5 rupees on every LPG refill to all LPG customers who will look and pay for it online. 5 रुपए का डिस्काउंट देंगे ये जो भी LPG कस्टमर्स है, ऑनलाइन जो भी पे करेंगे, ऑनलाइन जो भी खरीदेंगे. ओके, सो उनके लिए एक 5 रुपए का डिस्काउंट कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, कैशलेस इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं. ओके, सो कितने रुपए का डिस्काउंट किया है? 5 रुपए का डिस्काउंट दिया. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप क्योंकि हिंदू में ही मैंने देखा था तो मैंने इसको ऐड करा है इसमें. ओके, सो 5 रुपए का जो डिस्काउंट है वो दे रही है. ओके, तो स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर्स है Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited. Okay, next question. Which of the following private sector banks has entered into? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बैंक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उनको तो प्लीज आप अच्छे से लिख लो एक जगह. Which of the following private sector bank has entered into tie-up with the Bajaj Electricals for vendor financing using blockchain solution and announced to use the technology more aggressively as it saves over 70% in cost recently? Yes Bank. Okay, so Yes Bank has been tied up with the Bajaj Electricals for vendor financing using blockchain solution. Okay, blockchain solution, and announced to use the technology for more aggressively as it saves over 70% in cost recently. Okay, नेक्स्ट इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये हैं कि यस बैंक ने बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ करा है ब्लॉकचेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंस करने के लिए. एक और यस बैंक ने टोन टैग के साथ भी टाइड अप करा था फॉर मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन स्टार्टअप टू इंटीग्रेट एंड डिप्लॉय साउंड बेस्ड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स ऑन इट्स मोबाइल वॉलेट यस पे. तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यस पे लॉन्च करा यस बैंक ने, किसके साथ टाई अप करा था? तो किसके साथ टाई अप करा था? टोन टैग के साथ. ठीक है, और यस पे एक एप्लीकेशन लॉन्च करा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following two states has signed an MOU to join the Ujjwal Discom Assurance Yojana scheme recently? The answer is Telangana and Assam. Okay, so Telangana and Assam, two states has signed an MOU to join the Uday scheme recently. Okay, Telangana and Assam. Next question. ये एक फैक्ट है, क्वेश्चन एंड आंसर है. The two-day biotech conclave began in Guwahati recently. गुवाहाटी असम. ओके, गुवाहाटी कहां पे? असम में. तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है. The two-day biotech conclave began in Guwahati, Assam recently. Okay, this is organized by the Guwahati Biotech Park in association with industry body FINO. The conclave will create business and partnering opportunities for its stakeholders and to showcase the facilities and opportunities offered by the Guwahati Biotech Park. Okay, so the important question which can be framed here from here, the two-day biotech conclave begin from which city? Guwahati, Assam. Okay, next. Reserve Bank of India has extended the very important question.
The Reserve Bank of India has extended the period of enhanced PPI limit of 20,000 as a part of. What is the full form of a PPI? PPI का full form होता है Prepaid Payment Instruments. Okay, Prepaid Payment Instruments इसका नाम होता है, full form होता है. तो RBI ने क्या किया है? Has extended the period of enhanced PPI limit of 20,000 as part of efforts to promote digital payments recently. So what is the full form of PPI? PPI का full form होता है prepaid payments instrument. Okay, this is really important question. Some extra points also there. MDR का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. MDR का फुल फॉर्म होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट. MSS का फुल फॉर्म होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. एंड CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो. ओके, सो दीज थ्री आर आल्सो इंपॉर्टेंट. MDR का फुल फॉर्म क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट. MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. एंड CRR कैश रिजर्व ratio. Okay, next question. Who has been elected as the president of Haiti recently? Answer is a Jovenel Moise. Okay, Jovenel Moise. So who has been elected as the president of a Haiti? Jovenel Moise. Okay, next question. The United Nations 70th General Assembly has recognized the year 2017 as what? As the International Year of Sustainable Tourism for Development. It is also an important question. The United Nations 70th General Assembly ने 2017 को UN बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन को UN बोल सकते हैं. सो यूएन ने 70th जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस की जो है उन्होंने 2016-17 ईयर को किस को मतलब इसकी थीम क्या रखी या फिर इसको किस टाइटल से इसको रिकॉग्नाइज करा है. तो द आंसर इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the executive director of Reserve Bank of India recently? This is also a very important question. Answer is a Surekha Marandi. Okay, Surekha Marandi. So Surekha Marandi has been appointed as the executive director of Reserve Bank of India recently. Okay, in place of US Paliwal. Okay, so पहले मतलब US पालीवाल थे, उनके प्लेस पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई की बनाई गई है. इनका नाम है सुरेखा मारंडी. ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आरबीआई ने परवेज अहमद को अपॉइंट करा है एज चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स. ओके, 3 इयर्स के लिए जो परवेज अहमद है बहुत इंपॉर्टेंट है. परवेज अहमद को एज चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. Okay, next question. 9-member गवर्नमेंट पैनल फॉर्म टू मेक रिकमेंडेशन. जितने भी कमिटी है, जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 9-member गवर्नमेंट पैनल फॉर्म टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर ब्रिंगिंग आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव national sports development code across all disciplines. This committee headed by the इंजेती श्रीनिवास. इंजेती श्रीनिवास इसको हेड कर रहे हैं. जो 9-member गवर्नमेंट पैनल जो फॉर्म करा गया है टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर ब्रिंगिंग आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड across all disciplines. This committee headed by Injeti Srinivas. Okay, next. Who has stepped down as a captain of India's T20 and ODI format? I think you all are aware of this question. MS Dhoni. MS Dhoni has stepped down as a captain of India's T20 and ODI format of cricket recently. Okay. Next question. Has launched. Okay, which company has launched or which state has launched as health scheme Arogya Raksha scheme Tumalapalli Kalchetram for the people of above poverty line at 1200 rupees premium per annum? Answer is the Andhra Pradesh. Okay. Andhra Pradesh has launched a health scheme, Arogya Raksha scheme. Okay, Arogya Raksha scheme Tumalapalli Kalak Kshetram for the people of above poverty line. जो जितने भी people हैं वो जो भी poverty line के ऊपर के जो भी people हैं उनके लिए at 1200 premium per annum. Okay, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू. एन चंद्रबाबू नायडू क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. देखो, चीफ मिनिस्टर हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर पहले पढ़ लेना क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आता है. ओके, एंड क्योंकि अब जितने भी एग्जाम्स होंगे क्योंकि न्यू ईयर है तो इसमें जितने भी सीएम हैं सारे सीएम देखने, सारे अपॉइंटमेंट्स देखनी है. क्या उसका मैं एक अलग लेक्चर अपलोड करूंगा एग्जाम के पहले.
ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू हैज लॉन्च अ न्यू हेल्थ स्कीम आरोग्य रक्षा offering medical insurance to those who were not covered under any of existing health scheme of the state government। मतलब ये है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट ने जितनी भी हेल्थ स्कीम लॉन्च करी है अब तक, अगर उस स्कीम से कोई रिलेट नहीं करता, उस स्कीम को अभी तक किसी ने एनरोल नहीं किया है, तो एक ये नई स्कीम लॉन्च करी है। ये अबव पॉवर्टी लाइन वालों के लिए, लोगों के लिए है। अबव अबव पॉवर्टी लाइन वालों के ऊपर, अबव पॉवर्टी लाइन वालों के लिए ये है। ओके, सो इस स्कीम का नाम क्या है? आरोग्य रक्षा स्कीम। ओके, नेक्स्ट। Which of the following countries has defeated Bangladesh 3-1 to win their fourth consecutive South Asian Football Federation? Very important क्वेश्चन है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। इंडिया ने किसको डिफीट करा है? इंडिया ने डिफीट करा है बांग्लादेश को। ओके, सो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हेल्ड हुआ है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हेल्ड हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप एक बार ध्यान रखो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, पढ़ना सब चाहिए, पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ चीजें जब माइंड में रह जाती हैं तो वो इसलिए पढ़ लो, हो सकता है कि कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए ऐसा। वैसे हमेशा जैसे 2018 में जो मैचेस होने हैं, 2022 में जो होने हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, रेदर जो हो चुके हैं उससे। ठीक है, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है आपको। ठीक है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल जो है ये इंडिया ने वन करा है बाई defeating Bangladesh. Okay, next question. The ambassador to the European Union, Ivan Roses, has resigned from his post recently. Okay, तो ये कहाँ के एम्बेसडर थे? ये थे एम्बेसडर यूके के। ओके, द यूके एम्बेसडर टू द यूरोपियन यूनियन इवान रोजर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर है यूके। द यूके एम्बेसडर टू द यूरोपियन यूनियन इवान रोजर्स हैज रिजाइन्ड from his post recently. Okay, some extra points also there. John Key also resigned from PM of New Zealand है ये। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड थे ये जॉन की, इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बल्गेरियन के प्राइम मिनिस्टर थे बोयको बोरिसोव, और इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिग्नेशन पे एक क्वेश्चन आता है, इसलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशन थे। और ये भी एज वेल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूके एम्बेसडर जो थे यूरोपियन यूनियन के, जो अपॉइंट हुए थे इवान रोजर्स, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। ओके, सो जॉन की प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड एंड बोयको बोरिसोव प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुल्गारिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will be the skipper the Indian women's cricket team for the International Cricket Council World Cup qualifiers, which is to be played from February 3 to 21st 2017 in Colombo, Sri Lanka? Answer is a Mithali Raj. Okay, so Mithali Raj will be the skipper the Indian women's cricket team for the International Cricket Council World Cup qualifiers के लिए जो skipper select हुई हैं वो ये मिथाली राज। Okay, सो जो मिथाली राज है ये स्कीपर सिलेक्ट हुई हैं फॉर द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर द आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। ओके, सो द आंसर इज अ मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इन विच द डिजी धन मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। द आंसर इज अ मेरठ। इक्विवेलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरठ सिटी में जो डिजी धन मेला है वो ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following companies has created two tools, My Business and Digital Unlock, for the small and medium enterprises or businesses in India that would help to create an online presence besides a digital training program? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गूगल इंडिया ने दो टूल्स क्रिएट करे हैं। एक का नाम है क्या है? माई बिजनेस। एक का नाम है माई बिजनेस एंड एक का नाम है डिजिटल अनलॉक। ओके, ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, गूगल ने दो टूल्स लॉन्च करे हैं फॉर विच इंडस्ट्रीज? फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए। ओके, सो एसएमई के लिए ये दोनों टूल्स ऑर्गेनाइज करे हैं, दोनों टूल्स क्रिएट करे हैं गूगल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द 30 नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, चितवन नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? ये है आपका चितवन नेशनल पार्क, ये है नेपाल में। ओके, चितवन नेशनल पार्क है नेपाल में। चितवन नेशनल पार्क कहाँ पे है? नेपाल में। तो द
edition of Nepal's 5-day Chitwan Elephant Festival has kicked off in Kathmandu with the participation of over 50 elephants. तो ये जो एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया था, ये 30th एडिशन का था, नेपाल में सेलिब्रेट करा गया था ये, और नेपाल में काठमांडू में, ठीक है। तो काठमांडू नेपाल में ये करा गया था। अब इसमें कई सारे ट्रिकी क्वेश्चन थे। Justice Jagdish Singh has been sworn in as the 44th Chief Justice of India. So answer is the 44th. Okay, 44th Chief Justice कौन है अपने? वो है जगदीश सिंह, has been sworn in as a 44th Chief Justice of India. इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे टी.एस. ठाकुर। ओके, इसके पहले थे टी.एस. ठाकुर, बट टी.एस. ठाकुर का जो टेन्योर है वो 3 जनवरी 2017 को कंप्लीट हो गया है। तो अब कौन है? अब है जगदीश सिंह। ओके, ये 44 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following e-commerce companies has been awarded a patent for launching a giant flying warehouse that would act as a launch pad for drones to deliver items within minutes? Answer is Amazon. Amazon company has been awarded a patent for launching a giant flying warehouse that would act as a launch pad for drones to deliver items within minutes. Okay, so the answer is Amazon. Okay, answer is Amazon. Next question, which of the following cities PM Narendra Modi has inaugurated the 5-day annual Indian Science Congress recently? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे रिसेंटली हेल्ड हुई है? तो ये हेल्ड हुई है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। इंडियन साइंस कांग्रेस जो मीटिंग है ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? इनॉग्रेट हुई तिरुपति आंध्र प्रदेश में। इसी में एक और इम्पोर्टेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि 19th जो वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये हेल्ड हुई थी नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में 19th वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हेल्ड हुई थी। ओके, सो इंडियन साइंस कांग्रेस ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये हेल्ड हुई थी तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India has ranked third among the countries offering the highest average annual salary to expatriates according to HSBC holding data. Okay, so India की रैंक कितनी है एवरेज एनुअल सैलरी टू एक्सपेट्रिएट्स देने में, ऑफर करने में? अकॉर्डिंग टू HSBC होल्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग क्या है? तो इंडिया की रैंक है थर्ड। और इसमें टॉप किसने करा? इसमें टॉप करा है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, तो विच कंट्री हैज रैंक्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड टू एवरेज annual salary for to offering expatriates? Switzerland. Okay, which country has been topped? Switzerland, and India की रैंक कितनी है? थर्ड है। ऐसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक है 87 है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, और उसमें आइसलैंड ने जो है वो टॉप करा। आइसलैंड की जो रैंक है वो कितनी है? 1 है। ओके, फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman of the UPSC? It is a really very important question, very important question, because इसके पहले अलका सिरोही थी। अलका सिरोही यूपीएससी की चेयरमैन थी। अब इनकी जगह पे जो है वो है डेविड आर सीए मिलियर। ठीक है, डेविड आर सीए मिलियर इसकी ये अपॉइंट हुए हैं यूपीएससी के चेयरमैन। ओके, सो द आंसर इज डेविड आर सीए मिलियर। ओके, इसके पहले अलका सिरोही थी, बट अब जो है वो है डेविड आर सीए मिलियर। एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ये है कि नरेंद्र बत्रा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। सो नरेंद्र बत्रा प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है नरेंद्र बत्रा। एंड डेविड आर सीए मिलियर कौन है? ये यूपीएससी के चेयरमैन है। ओके, इसके पहले कौन थी? अलका सिरोही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries has become the first country in the world to pay a basic income to randomly picked citizens on a national level? Okay, answer is Finland. फिनलैंड बहुत ही न्यूज में रहा है इसके पहले भी, अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो फिनलैंड जो है, फिनलैंड कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पे अ बेसिक इनकम टू रैंडमली पिक्ड सिटीजंस ऑन अ नेशनल लेवल। ओके, देखिए फिनलैंड का एक जो फिनलैंड में था, फिनलैंड इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया इन द सेम इंडेक्स, इंडिया की 13th लीस्ट रैंक में था इंडिया। ठीक है, सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड की जो इंडेक्स प्रिपेयर हुई थी उसमें फिनलैंड ने टॉप करा था कि फिनलैंड सेफेस्ट है, और इंडिया 13th लीस्ट सेफेस्ट प्लेस में आता है। ठीक है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स
आल्सो कॉल्ड एज अ फिनलैंड। ओके, फिनलैंड को हम लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी बोलते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिनलैंड के लिए। ओके, फिनलैंड की कैपिटल बोलते हैं तो हेलसिंकी है, और फिनलैंड की करेंसी बोलते हैं तो वो क्या है, यूरो है। अगर फिनलैंड के हम कैपिटल बोलते हैं तो कैपिटल क्या है फिनलैंड की, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, और फिनलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइम मैगजीन ने नेम करा है पर्सन ऑफ द ईयर 2016 थे, पर्सन ऑफ द ईयर 2016 कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। यूएस प्रेसिडेंट है अब डोनाल्ड ट्रंप, तो टाइम मैगजीन नेम्ड एज अ पर्सन ऑफ द ईयर 2016 यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The government has the government has announced to pay interest for 60 days on loans are taken by farmers for Rabi season from district cooperative banks and primary societies. So answer is a 60 days. Okay, answer is a 60 days. The government has announced to pay interest for 60 days on loans. मतलब कि 60 days के लिए पे इंटरेस्ट कहाँ से ये हुई थी, टेस्ट फाइड हुई थी, ये अब्दुल कलाम व्हीलर आइसलैंड से हुई थी। और ये कहाँ पे, ये अब्दुल कलाम व्हीलर आइसलैंड जो है ये उड़ीसा में है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड फैमिली सोसाइटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया हैज सक्सेस अग्नि 4 जो मिसाइल है वो टेस्ट फायर्ड हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है अग्नि अग्नि 4 मिसाइल जो है ये सरफेस टू सरफेस है। ओके, ये सरफेस टू सरफेस है, अग्नि 4 मिसाइल जो है ये सरफेस टू सरफेस है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कि पृथ्वी 1 जो है ये पृथ्वी 1 इज रिलेटेड टू इंडियन आर्मी, पृथ्वी 2 इज रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स एंड पृथ्वी 3 इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, AFN, AFN से इसको याद कर सकते हैं, AFN। तो A फॉर इंडियन आर्मी, पृथ्वी 2 की बात करते हैं तो एयरफोर्स, F से फोर्स एंड N से नेवी। ओके, तो इंडियन आर्मी, फोर्स एंड नेवी। AFN कोड से याद रख सकते हैं कि पृथ्वी 1 जो है ये इंडियन आर्मी से रिलेट करती है, पृथ्वी 2 जो है ये एयरफोर्स से रिलेट कर रही है, और पृथ्वी 3 जो है नेवी से रिलेट कर रही है। ओके, सो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट से। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिमूव्ड BCCI प्रेसिडेंट फ्रॉम देयर पोस्ट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, द सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव करा है किसको, अनुराग ठाकुर को रिमूव करा है, एंड अजय सिरके। अजय सिरके BCCI सेक्रेटरी थे एंड BCCI प्रेसिडेंट थे अनुराग ठाकुर। तो ये अब रिमूव कर दिए गए हैं। ये कहा गया है कि इज नॉट, मतलब सेइंग क्रिकेट इज नॉट अ पर्सनल टर्फ और अ फिफ्डम। फिफ्डम हम बोलते हैं कोई जागीर जैसे बोलते हैं, तो वहां पे बोलते हैं फिफ्डम, और टर्फ होता है मैदान। ठीक है, मैदान बोल लो कोई, मतलब किसी की, मतलब ये कहा है कि क्रिकेट जो है ये किसी की पर्सनल कोई मैदान या कोई जागीर नहीं है। ठीक है, मतलब जो मन आ रहा है वो आप कर रहे हैं। तो वो इसलिए अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के दोनों को निकाल दिया गया है। ओके, अजय शिर्के BCCI सेक्रेटरी है, ठीक है, BCCI प्रेसिडेंट है अनुराग ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the app which has launched by the PM Narendra Modi to facilitate digital cash transactions with only a thumbprint after the bank account. I think आप इस क्वेश्चन से बहुत फैमिलियर होंगे कि भीम एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भीम का फुल फॉर्म है, जो भीम का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये होगा कि आप थंब प्रिंट से जो जितने भी डिजिटल कैश ट्रांजेक्शन है वो आप सिर्फ थंब प्रिंट से ही कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि आपको जो बैंक अकाउंट है वो आधार गेटवे से लिंक्ड है, तो जैसे आप थंब प्रिंट करेंगे तो वो क्या होगा, आधार से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कैच कर लेगा। ठीक है, तो इससे एक बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन लॉन्च करा गया है ये। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका नाम है। तो भीम एप्लीकेशन विच हैज लॉन्च बाय द PM नरेंद्र मोदी टू फैसिलिटेट डिजिटल कैश ट्रांजैक्शंस with only a thumbprint. Okay, next. The soon to be released book titled Khullam Khulla is the autobiography of Rishi Kapoor. Answer is the Rishi Kapoor. ओके, तो ऋषि कपूर की ये ऑटोबायोग्राफी है खुल्लम खुल्ला। इसके पहले भी मैं आपको 3 बुक्स और बता चुका हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो खुल्लम खुल्ला किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है ऋषि कपूर की। इस एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि एक और बुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। सो डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स ये किसकी, ये हैज बीन ऑथर बाय द रामचंद्र गुहा। Okay, so Democrats and Dissenters has been authored by the Ramchandra Guha.
नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following state governments has sanctioned disbursement of 2 crore rupees for the district level sports complexes for which sport training department of every district? Answer is a Maharashtra. Maharashtra government has sanctioned disbursement of 2 crore rupees. Okay, Maharashtra government has sanctioned disbursement of 2 crore rupees for the district level sport complex for which sport training department of every district will be dispersing the funds. Okay, so answer is the Maharashtra. Okay, next question. Which of the following public sector banks has tied up with online classified portal magicbricks.com to conduct joint marketing activities and help rejuvenate the real estate sector? Answer is the State Bank of India. State Bank of India State Bank of India has tied up with the online classified portal magicbricks.com. Okay, so magicbricks.com से SBI ने tied up करा है for मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर में हेल्प करने के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर को हेल्प करने के लिए तो एसबीआई ने मैजिक ब्रिक्स.com के साथ क्या है, कोलैबोरेट करा है. ओके, सो ये था इसमें. और टू किक स्टार्ट द एमओयू एसबीआई मैजिक ब्रिक्स आर लॉन्चिंग द सील द डील कैंपेन. सो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कैंपेन का नाम क्या है. जो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं. क्वेश्चन तो ये कि एसबीआई ने किसके साथ करा है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन कि एसबीआई ने किस क्लासिफाइड पोर्टल के साथ करा है, तो मैजिक ब्रिक्स डॉट कॉम के साथ करा है. एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कैंपेन का नाम क्या है, तो कैंपेन का नाम है सील द डील कैंपेन. ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि पीएम मोदी हैज अनाउंस टू कन्वर्ट. जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने कलेक्ट करे हैं आपके लिए, जो था हिंदू न्यूज़पेपर से कलेक्ट करे हैं और ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं. अब इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना कैसे वो बता देता हूँ. देखिए, सबसे पहले तो आप जो भी आप क्विज, इतनी सारी वेबसाइट से आप सबसे पहले क्विज करिए उनकी. और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम टाइम पे आपके बहुत काम आने वाले हैं. ये ऐसे क्वेश्चंस है जो पॉसिबिलिटी इसमें आने की बहुत है, मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड मैं फेसबुक पे आपको अपना फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, facebook.com/istudyicon24. ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं. और ओके, सो